قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی یہ میری اپنی بایوگرافی کا پارٹ 10 ہے۔ تو یہ میں ماشاءاللہ یعنی کہ ابھی پاکستان میں ہوں، آج یعنی کہ فروری کی ماشاءاللہ 10 تاریخ ہے 2023۔ تو ابھی میں پاکستان آ گیا ہوں۔ تو یہ پاکستان سے آپ کے سامنے یعنی کہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ جو تھا یعنی کہ میں آپ کو دبئی میں یعنی کہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ بھائی دبئی میں یعنی کہ دبئی کیسا ہے۔ تو میں نے یہ کہ دبئی میں کیا کیا، تو 1976 سے لے کر 2000 یعنی کہ 8 تک 32 ایئرز میں دبئی میں رہا۔ ماشاءاللہ ساری زندگی جو ہے 32 سال جو ہے نا میرے سارے کے سارے جو تھے نا وہ بینک میں گزرے۔ تو جب میں چھوڑا تو اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً میں بینک مینیجر تھا۔ تو دبئی میں اللہ کے فضل و کرم سے نا بہت کچھ میں نے حاصل کیا۔ سب سے بڑی چیز تو دبئی میں مجھے اللہ کے یعنی کہ دین سے کافی واقفیت ہوئی، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یعنی کہ دین تو مکمل نہیں ہو سکتا، ہم کتنا بھی کر سکیں، لیکن جتنا بھی ہو سکا تقریباً 25 سال اللہ نے مجھے موقع دیا، میں یعنی کہ درس قرآن پاک میں بیٹھتا تھا۔ تو اس کے علاوہ یعنی کہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے، یہ جمعیت کے جو ہے، اور یعنی کہ مولانا اعظم طارق تھے اس کے جو یعنی کہ سپاہ صحابہ کے چیف تھے، ان سے ملاقات ہوئی ون بائی ون۔ تو ایسے اور بھی بڑے لوگوں سے یعنی کہ دبئی میں میری ملاقات ہوئی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے دبئی سے نا بہت کچھ ملا، یہاں تک میرا جو بڑا بیٹا جو ہے نا ماشاءاللہ یہ اس وقت بالکل چھوٹا سا تھا۔ تو میرا آنا جانا تھا یعنی کہ شیخوں کے محل وغیرہ، کیونکہ ہمارے سارے پاکستانی جو تھے نا تقریباً شیخوں کے محلوں میں یعنی کہ وہاں کام کرتے تھے، تو وہ میرے کچھ عزیز تھے تو وہ وہاں بلا لیتے تھے۔ تو میرا یہ بیٹا گیا، تو یہ جو اس وقت ملکہ تھی نا، اس وقت شیخ راشد تھے دبئی کے یعنی کہ مالک ہیں، تو ان کی جو وائف تھی نا اس نے میرے بیٹے کو یعنی کہ اپنی گود میں بٹھایا، یعنی کہ دبئی کی جو ملکہ تھی اس نے میرے بڑے بیٹے کو محل میں اپنی گود میں بٹھایا، یعنی کہ بڑا اللہ کا کرم سنیے، میرے بڑے عزیز تھے۔ تو ان کا یہ سارے شیخوں کے ساتھ بڑا لین دین تھا، یعنی کہ ان کے محلوں میں یعنی کہ پیلسوں میں وہی کام کرتے تھے، ان کی گائے بھینسیں جو بھی باہر تھے وہ بھی انہی کے پاس تھا۔ تو اللہ کا بڑا احسان دبئی سے، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی یعنی کہ اس وقت جو میں جب 2008 میں نے چھوڑا بینک، تو اس وقت کی سیلری اگر آج کے حساب سے میں کیلکولیٹ کروں تو تقریباً 15 لاکھ مہینے کا تھا، پاکستانی 15 لاکھ روپیہ مہینے کی میری اللہ کے فضل و کرم سے سیلری تھی جب میں نے یعنی کہ دبئی چھوڑا۔ 15 لاکھ یہاں تو
यानी कि साल का भी कोई कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह मुझे उस वक़्त 15 लाख महीने का दे रहा था। तो अल्लाह के फजल करम से दुबई से मैंने बहुत कुछ हासिल किया, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। यानी कि वैसे भी यानी कि बड़ी-बड़ी यानी कि मीटिंगें होती थी, बड़े-बड़े होटलों में मीटिंग होती थी, बड़े लोगों से यहाँ तक काउंसलर जो थे मुख्तलिफ मुल्कों के, उनके यानी कि मेरे साथ रवाबत होते थे, उनकी कंपनियाँ थी, वो बैंक में मेरे पास आते थे, मुझे मिलते थे। बड़ा अल्लाह का करम है, यानी कि दुबई का तो मैं काउंट में गिनना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में 3-4 एपिसोड जो है ना, यानी कि पार्ट वो इसी में गुजर जाएँगे। तो बाकी मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी ना, वो दुबई की मस्जिदें गई, चप्पे-चप्पे पे मस्जिदें हैं, बड़ी आलीशान मस्जिदें हैं। और मस्जिदें भी जब अज़ान होती है तो आप कभी देखें तो मस्जिदें भर जाती हैं। मैं तो कहता हूँ कि दुबई को अगर अल्लाह ने दिया हुआ तो सिर्फ़ मस्जिदों की बदौलत है, कि मस्जिदों में, हालाँकि वहाँ के लोग जो है ना वो बड़े कम है, 25% है, हम 75% है। और हिंदुओं की भी एक अक्सरियत है, लेकिन फिर भी मस्जिदें जो है ना वो अल्लाह के फज़ल व करम से वहाँ भरी होती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि अगर अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो, यानी कि अल्लाह की दीन की तरफ लोग मुतवज्जो हों। देखें ना, अभी हमें पाकिस्तान में क्या मार पड़ रही है, यानी पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारे मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। मैं हैरान हूँ कि यानी कि सुबह के टाइम फजर की नमाज में आप एक गांव में कम से कम यानी कि वोटर जो हैं वो 2000 या 3000 वोटर हैं, तो 2-3000 अगर वोटर होंगे तो घर कितने होंगे, हज़ारों के हिसाब से हुआ है ना। तो वो सुबह मस्जिद में जाए फजर की नमाज में, तो आपको बड़े मिलेंगे तो 3 आदमी मिलेंगे, नहीं तो 2 मिलेंगे। और कभी-कभी तो वो बेचारा जो अज़ान देता है वो अकेले ही होता है। ये तो हाल है हमारा। और दुबई में चले जाओ, फजर की नमाज भी देखो ना, मस्जिद भरी होती है। यानी ये है वो चीज़ जो, यानी कि जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह आपको देगा भी, नवाज़ेगा भी और याद भी रखेगा। लेकिन हमारे तो पाकिस्तान में तो अल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ना कोई चला रहा है, ना ये चल रहा है। ये अल्लाह तवक्कल है। यानी कि बस अल्लाह ही इसको चला रहा है, पता नहीं उसने हमारी कौन-सी नस्ल से कोई काम लेना है, वरना ये चलने वाली कोई बात नहीं है। यानी कि पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है पूरी दुनिया में, जहाँ आपको कोई चीज़ खालिस नहीं मिलेगी। यानी कि हर चीज़ में मिलावट है। यहाँ तक मैं तो कहूँगा कि इंसान में भी मिलावट है। उसके दिल में कुछ और होता है, ज़ुबान पे कुछ और होता है। यानी कि इंसान भी मिलावट वाले, चीज़ें भी मिलावट वाली। तो वो मुल्क फिर भी चल रहा है। ये तो अल्लाह का कोई ख़ास ही करम है। कोई नेक लोग हैं जिनकी वज़ह से यानी कि ये मुल्क चल रहा है, वरना आप देख लो नीचे से लेकर ऊपर तक क्या हो रहा है। ये सियासी तमाशा आपके सामने लगा हुआ है। यानी कि साल के करीब हो चला है ये तमाशा लगे हुए। क्या है, गरीब मर रहा है। यानी कि जब ये तमाशा शुरू हुआ था उस वक़्त पेट्रोल 150 था, आज 250 हो गया, उस वक़्त डॉलर 150 था, आज डॉलर 300 हो गया। यानी कि ये देखो, तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तानी ये आपका नुकसान है। डॉलर महँगा होगा, उनको फ़ायदा है, चीज़ें महँगी होंगी, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं जो आपको चीज़ें बनाकर देती हैं। डॉलर भी उनके हैं, हुकूमत भी उनकी है, उनके खाने-पीने की हर चीज़ फ्री है। यानी कि पैसा तो आपने देना है, पेट्रोल अगर आप लेंगे तो आप पैसे देंगे, अगर कोई खाने वाली चीज़ लेंगे तो पैसे देंगे। उसके ऊपर आप टैक्स भी देंगे, उनको ना टैक्स देने का है, ना कोई चीज़ की कीमत देनी, उनको तो फ्री मिलता है सब कुछ। तो फिर भी क कौम पता नहीं, अल्लाह ताला है मेरी कौम को भी हिदायत दे, यानी कि इस कौम की भी समझ नहीं आती। आज किसी को ज़िंदाबाद कहते हैं, कल उसको मुर्दाबाद कहते हैं। वही से देखो, यानी कि एक पार्टी का लीडर आता है तो वो उसके जलसे में देखो वो इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरी पार्टी का लीडर आता है तो फिर वही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या तमाशा है यार। और मैं यहाँ अमेरिका में, यानी कि अभी तो मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मैं अमेरिका में था, वहाँ इलेक्शन हुए हैं। पहले नंबर पे ना कोई जलसा, ना जुलूस, ना कोई रैली, ना कोई बात, सिर्फ डोर टू डोर। मुझे, यानी कि अमेरिकन सेनेटर, मैं एक आम शहरी हूँ, वो भी पाकिस्तान का, वहाँ का तो यानी कि मैं शहरी भी नहीं हूँ, मेरे पास तो ग्रीन कार्ड है। तो वहाँ यानी कि वो सेनेटर मुझे मिलते हैं। मेरी कभी आपने देखी होगी कुछ यानी क्या वीडियोज़ हैं, वो सेनेटर मुझे मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ अल्लाह का करम, यानी कि देख लो आपको ये मिलेगा ही नहीं। ये जब आप इनको इलेक्ट करके भेज देते हैं
तो ये समझते हैं ना कि ये जो है ना, ये पीछे भेड़ बकरियां हैं। तो वो तो आपसे जान छुड़ाकर वहां इस्लामाबाद, लाहौर अपने जाकर बैठ जाते हैं लॉजेस में। आप लोग धक्के खा रहे होते हैं, महंगाई, ये वो और होना, और फिर भी आपको अकल नहीं आती। फिर भी आप इन लोगों के पीछे नारे मारते हैं, इनके पिट्ठू बने होते हैं, इनके लिए ये काम करते हैं। पता नहीं, आप भी अल्लाह ताला है, मेरी कौम को भी हिदायत है, ये कौम कब बनेगी, यानी कि कब वो जो यानी कि 20 से 25 लाख लोग बेचारे शहीद हुए थे ये मुल्क आज़ाद कराने में, उनके खून का यानी कि कब इनको कुछ गैरत आएगी कि वो इतने लोग शहीद हो गए। तो हमने उस पाकिस्तान का क्या किया? पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, वो किधर गया बेचारा? यानी कि आप लोग पैसे के पीछे भाग रहे हो, ला 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 शॉर्टकट। मैं सोया हुआ हूँ, सुबह रात को सोऊं, सुबह मेरे पास मेरे तकिए के नीचे को 1 करोड़ का चेक हो, बस। दिन में भी शॉर्टकट, कामों में भी शॉर्टकट, यानी कि कोई ना आप मेहनत करते हैं आप लोग। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया, अल्लाह आपको भी हिदायत दे। यानी कि ना मुल्क चलता है, ना कोई चलने देता है, ना कोई चला रहा है। अल्लाह तो अकल बस लगा हुआ है, जिसके हाथ में जो जो क्या बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दुबई माशाल्लाह मैं तो हैरान हुआ हूँ कि जब मैं गया था 1976 एक गांव था, जब 2008 8 में मैं वहां से चला, तो दुनिया का यानी कि खूबसूरत तरीन एक शहर था दुबई, कि दुनिया का मरकज बन गया था। 32 साल में मरकज बन गया। हम 75 साल में मरकज बने हुए से बेमरकज हो गए। यानी कि हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, उन लोगों के पास कुछ नहीं, रेत ही रेत है। हैं? कुछ नहीं, मेरे दुबई में तेल भी नहीं है। वो तेल भी बाहर से लेता है, गैस भी बाहर से लेता है, रेत ही रेत है। लेकिन जाओ देखो, सिर्फ ये है कि उसकी मस्जिदें भरी हुई है, लोग दीन की तरफ राग़िब हैं। यहाँ ना आपको दीन का पता है, ना दुनिया का पता है, बस मार-धाड़ लगी हुई है, माल के पीछे भाग रहे हैं। और रिज़्क राज़िक अल्लाह है, उससे रिज़्क माँगो। आप लोग पता है क्या कहते हैं? भाई हमने, यानी कि उसने बोला है कुरान पाक में कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तुम पता है क्या कहते हो? इबादत हम नहीं करनी, रिज़्क के लिए हम ज़लील होंगे। भाई उसने तो इबादत के लिए पैदा किया ना, इबादत करो, फिर देखो वो कैसे देता है। उससे तो आप माँगते नहीं हो, आप दुनियादारों से माँगते हैं। कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी का चमचा बनो, किसी का च ये कोई ज़िंदगी नहीं है। पाकिस्तानियों, आप एक कौम बनो, अल्लाह आपको हिदायत दे, कौम बनो, तो फिर देखो क्या बनता है। आपको तो अल्लाह ने यानी कि एक ख़ास ये कि देखो ना, ये बुज़ुर्गों की यानी कि ख़्वाब है कि उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़्वाब में मिले कि भई ये एक टुकड़ा जो है ना ये बनाओ। तो वो बेचारे उन लोगों ने शुरू कर दिया, उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने हमको ये मुल्क दे दिया। आज हमने क्या किया, पहले तो हमने उसको 2 हिस्सों में कर दिया, आगे अल्लाह ही बेहतर जाने आप लोगों ने क्या करना है। तो कुछ आप भी सोचो, यानी कि चारों तरफ देखो आपके। कल दुबई यानी कि शुरू हुआ, आज दुबई कहाँ पहुंच गया। देखिए ये जो अमेरिका है, दूसरे यूरोप, ये वो, क्या इनमें कोई और चीज है? इनमें भी इंसान ही रहते हैं, लेकिन वो इंसान असूल पे चलते हैं, अपने कानून पे चलते हैं, वो मेहनत करते हैं। आप भी असूलों पे चलो, कानून पे चलो। एक पहले तो ये है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है ही नहीं। यहाँ पे कानून नज़र नहीं आता, कानून बना हुआ है लेकिन नज़र नहीं था। कानून की हुक्मरानी होगी तो हर चीज़ होगी। अगर आपको इंसाफ इंसाफ किधर है? कोई मुझे यानी कि कसम खाकर बताए कि पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिलता है? ये देखो क्या तमाशा लगा हुआ है ऊपर, हर रोज़ बड़े-बड़े लोगों के केसेस। अल्लाह अल्लाह, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, करप्शन, चोर, डाकू, फलां-ढिमका, तो ना कोई किसी को पकड़ता है। इधर से पकड़ता है, इधर से ज़मानत हो जाती है। वो ज़मानत हो गई तो वो फूलों के हार उनको गले में डालते हैं। यानी कि वो जो उसका अरबों का मामला था ना, वो अदालत ने उसको यानी कि जब उसकी ज़मानत की तो वो गया। अभी उसको कोई पूछ ही नहीं सकता, भाई अदालत में केस है ना, तो वो अदालत तो केस मुकाएगी नहीं ना। तो वो अरबों वो खा गया। यानी कि अदालतें ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये उनको अदालती प्रोटेक्शन मिल जाती है, ये जो ज़मानत वाली चीज़ होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला करम करे। मैं तो, क्योंकि दुनिया में घूम रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, दुबई देखा, सऊदीया देखा, अब मैंने नहीं ऐसा मैंने ना कानून देखा, ना लोग देखे हैं जैसे पाकिस्तान में है। अल्लाह हमें यानी कि
ہدایت دے. ہم اللہ سے مانگیں، لوگوں سے نہ مانگیں. اللہ ہمارا رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تو اس کی طرف رجوع کریں. آپ کو صرف اس نے پیدا کیا ہوا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو اس کی عبادت کرو، اس سے مانگو، پھر دیکھو کیا بنتا ہے. اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.